All right, guys. So today we'll be discussing previous year questions of paper 1, section 2, topic 11, that is social movements. इसमें तीन चीजें हैं majorly: civil liberties and human rights movement, women's movement and environmentalist movements. ठीक है, let's get started. हम random questions करते हैं. There are total 9 questions. Question number 9 देख लो एक बार. Analyze the nature of urban environmental movements in India. Have they been successful? Please read. है क्या यहाँ पे देव? Actually, can I read? Yes, please go ahead. Okay. In Constitution envisaged the state to protect and improve the forest and the wildlife DPSP, where they expect from its citizens to protect their natural environment. That was fundamental right. Still, the environmental movement has remained a limited success in changing the developmental approach in India. Sridhar Narayan calls this as far-righting approach where environmental movement has remained limited to forms of protest. I mean, actually, it's not clear, those texts. It's a blurred. Oh, it's getting lost. Sales, बाकी लोग को पढ़ने आ रहा है क्या? नहीं क्लियर नहीं है. ब्लर दिख रहा है. It's not clear. दृश्यम है. Yeah, क्लियर नहीं. it's better now. डबल टैप कर लीजिए ना उस पे. Okay. जो ग्रुप में होगा उसमें तो दिख सकता है ना स्क्रीन के अलावा भी. Should I read या फिर दशरथ जी आप पढ़ लीजिए. Okay. Actually, it's better. I'll do. I do. Okay. India observed the active environment protection movement since 1917 or Goa. The modern environment movement traces its origin in the Chipko movement in Joringo Himalayas, and the conservation of nature was considered as a luxury of riches. Then, and the more environmentalists like S.L. Bahguna and Chandi West were criticized as CIA agents. The most 1990s, the phase of the growth of protectionism are good. The more research and the institutional arrangement were set up, this phase is more urban in nature. However, they were now dismissed as old socialist goals. The contemporary urban environmental movements are concerned with local issues like array colony movement in Mumbai or felling of trees for metro projects. However, the urban environment movements remain a limited success. Challenges like lack of resources, lack of expertise, corruption, chronic capitalism still plague their success. According to Sridhar Narayan, environmental movements still they become political issues, their impact is going to be limited. She calls for new environmentalism where it is linked with protecting the democracy. I think we can also add the recent EAE in 2019 of the environmental impact assessment, and there's a mining and that's a place for diamond mining and felling of more than 200,000 trees. We can also add that point. It would be better. And there are some new environmental scholars like it's not in Sumitra. I don't know, remember her name, it's a long time. She's also a good environmental scholar for us. Okay. Actually, where want to start? Please read the points on the screen. These are some value addition. Okay. Ramchandra Guha, the comparison, Northern countries, led by scientists, full stomach, empty stomach. And it's one more thing, the full stomach, empty stomach, we can use the Bird program, their mottos. Okay, the southern countries led by poor and ignorant. Example, Odisha tribals against Vedanta and POSCO. So I like to add a keyword that resource cards. Okay, we can use a word resource cards.
I will explain at the end. Polluted skies, dead river, disappearing forest, displaced peasants, and the tribals are seen even 40 years after the Chipko movement. In the book Fisherland, An Ecological History of India, the basket case of environmental tragedies to be done, empowerment of people, valuation of natural resources, dissemination of knowledge, and in book Ecology and Equity, critique of developmental model post-independent phases of Indian environmental movements in the book Inequate Woods. The phase 1, 1970s, the age of environmental innocence, the origin of Chipko movement in Central Himalayas. The screen get worse. Okay. They add new dimensions to the democracy. The ideological challenge the existing developmental pattern. The movement were considered as interlopers, luxury of rich nations, environmentalists Sunderlal Bahuguna and Chandi Prasad Bhatt, seen as the CIA agents. In the phase 2, 1980s, the department, 90 days is the growth of environmental consciousness, media attention by journalists like Anil Agarwal and Nagesh Hurj, Shekhar Pathak. And 1980s, the Department of Environment set up. And the phase 3, 1990s, the growth of professionalism, research taken up by the professional and socialist scientists, ecological science, sunlights that Indian Institute of Science and the growth of NGOs, including foreign, the new economic policy, more degradation, the neither pro-poor nor pro-environment, rise of left-wing extremism, the environmentalists, all sociologist guys instead of CAHs, unsustainable project clearance by the ministry. I'd like to add a key point that there's resource curse. Okay, it's used by third world country scholar. Just a moment. He in his book Looting Machine. Okay, Tom Burgess. Okay, he used the resource curse to say that in some parts, even we can use the term Jharkhand, even Chhattisgarh. There are these areas rich of mineral resources, but the people does not get benefit from that. Okay, so it's a curse. I mean, they are taking away the minerals without giving back the benefit. So we can use this keyword if you like. Then sure. Okay. So anyone to add something? Hello. किसी और को कुछ ऐड करना है क्या? Does anybody wants to add anything? See, I can formulate an answer if you people allow me, but just verbally, if people allow me. Yeah, sure. Please do. So first, I will just lay out the structure because time is not permitting me to lay out all the answer. So firstly, what I would think of the urban movement is it is very narrowed down question. So I have examples of like Narmada Bachao Andolan and Apiko movement. And we cannot include this urban movement as a Chipko movement because it was based in rural areas of Uttarakhand, and so these are the two basic movements wherein we will be. I can see someone typing. Should I just? I'm sorry, I was distracted. I think. Continue. First, we will. Hey, please go ahead. Okay, we'll do. Please go ahead. Answer in just terms like the social base of the movement has to be studied. I mean, in Narmada Bachao Andolan, as far as I can remember, there was a journalist called Medha Patkar. I think I'm not sure, very much sure. She is not journalist. Environmentalist. No, we can call it. I was very much in doubt of that. Social servant.
Okay, so social service women, and in the Apico movement, I can just give a contrast wherein the social movements of the urban movement have been differential. Okay, so in rural movements, what we witness is the educated class comes as the leadership, but in urban movements, it is the consolidated part of a like a group structure wherein the social server Medha Patkar, I think. So she was connected to one NGO who was in further coordinating the urban movement. Contrary to what it is in rural movement, in urban movement it was different. And secondly, have they been successful? If the main answer is to be answered, I would say in terms of absolute success, no, but in specific terms, yes, because if we take the example of this sterilite copper in the Vishakhapatnam, I guess, or in some South Asia, Vedanta Group. Huh? South Vedanta Group. Yeah, Vedanta Group. In Vedanta Group. It was, I guess, absolute failure because the factory is now open because of COVID-19 oxygen production, and there are different current movement wherein we see that the organized group is not very much perfect in their formation, and often at times they are painted as traitors or anything like that. What Ajit Doval says, threat to national security. So it is not right to say that they have succeeded, but it is not wrong to say that they are traitors or anything like that, because environmental movement, as Kamla Bhasin, I guess we can quote Kamla Bhasin, right? Can we quote Kamla Bhasin in this answer? You please tell us what she said. Many Kamla of us Bhasin was of the opinion that Kamla Bhasin was of the opinion that there has been transformation of urban movements, specifically to this environmental movements. That the social base has firstly changed. Secondly, the corresponding structure which regulates the movement has been changed. Thirdly, the response of the government or the administration is also being changed. Yes, that we can put. Okay, so that was all. If I were to structure the answer, I would have brainstormed a lot more, but at the verbal sense, I believe I can give only this much. Guys, there is a new book called The Nutmeg's Curse Parables for a Crisis in Crisis, written by Amitav Ghosh. There is a podcast on 3 Sandeep Roy, so you could listen it. I will type it summary by tomorrow. Can we add a river cleaning project in this, just like Ganga Swachhata project, that all? So that is, they are also environmental project, and based in a urban area. So someone please check over that as well. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। जी सर। ठीक है, somebody please read this question. स्क्रीन नहीं दिख रहा। जिसको स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, डबल टैप कर लीजिए एक बार, बीच में डबल टैप कर लीजिए। नहीं, थोड़ा 10 सेकेंड ला ब्लर होता है, उसके बाद क्लियर हो जाता है। शेयर स्क्रीन ही नहीं है सर। Not share the screen, please. Okay. Screen off है अभी तो। Yeah. Now it's okay. It's a question again. Can I read? स्क्रीन शेयर करना है क्या? नहीं करूँ? हो गया, मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन है, रोड ऑफ environmental justice in India from 1947 till today exposes the inadequacy of laws, policies, courts, administration mechanism and civil society activism in India. Critically examined. And state responses और civil society का देखेंगे 1947 से आज तक। आंसर है, polluted skies, dead forests, dry rivers, displaced tribals and farmers protest is what we see after 40 years of Chipko movement, RC Guatels.
Next paragraph. Environmentalism in India has been a cause of concerns. It evolved from bread and butter issue post-independence and has now evolved to both bread and butter aspect as well as health and sustainable livelihood. Road for environmental justice has been roller coaster ride. It is filled with certain success and awareness campaign and have deep failure. Environmentalists are criticized as CIA agents hurting developmental projects. From hydropower projects to blocking Char Dham highway, environmentalist has been forefront of victim of accusation by dominant stream. Medha Patkar, leader of NBA, failed to secure the land and housing for displaced tribals. Further, despite India's forest policy of 33% of land reserved for forest, India's geographical land under screen thoda. Geographical land under forest is merely 23%. अब 24 है. However, the environmental movement has not been empty-handed in India. Chipko movement has led to rising environmental awareness and has witnessed Silent Valley protest in South India. Women Empowerment and Legal Initiatives 42nd Amendment Act inserted an article in DPSP for environmental justice. Further, Indian Forest Act was amended to provide more rights to locals. Also, Gandhian approach and women inclusively marked an inclusive approach and reflect rising environmental discourse in India. कंक्लूजन नहीं है. एक बार समराइज कर दो एक बार दशरथ भाई. ठीक है. ठीक है. इन्होंने आरसी गोवा के स्टेटमेंट से जो उन्होंने कंसिक्वेंट दिया है कि आज दिखते क्या है, तो पॉलिटिक्स डिसाइडेड फॉरेस्ट ड्राई रिवर्स डिस्प्लेस्ड ट्राइबल्स फार्मर्स प्रोटेस्ट जो भी है सब चल रहा है चिपको मूवमेंट के 40 साल होने के बाद भी. फिर environmentalism in India has been a cause of concern. It itself is a concern. Means it evolved from the bread and butter issue in post-independence. ठीक है. Now it is also a health and sustainable livelihood. Environmental justice road in roller coaster, filled with certain success and certain failure, rather deep failure. It also environmentalists criticize CIA agents against developmental projects. Example is hydropower against Char Dham highway. It is example. Medha Patkar even failed to rehabilitation of the displaced tribals. 33% land in forest policy is still 24%. However, environmental movement has not been empty-handed. A little bit success means Chipko movement, rising environmental awareness. Like example, Silent Valley protest in South India, women empowerment, 42nd Amendment in DPSP, environmental justice etc. Further, another success is that Indian Forest Act was amended to provide more rights to locals. Also, Gandhian approach and women inclusivity marks an inclusive approach. That's it. ठीक है. किसी को ऐड करना है इसमें कुछ? इसमें एनजीटी वगैरह को भी डाल सकते हैं ना, एक्ट पॉलिसीज में है. करेक्ट. एनजीटी कब आया था? 2000 में आया था ना कुछ तो. 2002 आई गेस. 2010 में 10 में 2010. हाँ, तो लिख सकते हैं ना कि 2010 में एनजीटी एक्ट आया and it has kind of changed lot of things. एग्जैक्टली लिख सकते हैं. और इसके अलावा और एक लिख सकते हैं हम बात, जैसे कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए जो एक्ट इवॉल्व हुआ है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट. यस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है नो. हाँ, यस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वो एक्ट इवॉल्व हुआ है. पब्लिक कंसल्टेशन बिकम कंपल्सरी. So that is also one of important point. One more point is that it is a part of success. I think it will be government response, state's response. So we can also categorize like things. First we shall focus on acts, then institutions, then government, Supreme Court judgments, like things. So ऐसे करेंगे तो answer structure will be more structured, I think. तो right from 47 तो हम लोग सबसे आते हैं 42nd Amendment Act में, जिसमें कि फॉरेस्ट को कंकरेंट लिस्ट में डाला गया, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज में डाला गया, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, फॉरेस्ट एक्ट आया,
और वाटर एक्ट ये सब आया, स्टेट का रिस्पॉन्स था। फिर स्टेट का फिर एनजीटी आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, और एनसीपी नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी आया। ये सब स्टेट का रिस्पॉन्स था। और ये हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आया। इंस्टीट्यूशंस में डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट। One more thing we can add here that in a recent time the Char Dham highway expansion matter, whereas government has divided that highway into a very small corridor, so that should not be come into public consultation itself. So I think judiciary take yes sir, yeah, you are right. To avoid the public scrutiny, they are doing like these things. So we can criticize government on that with live example. Yeah. However, yesterday Supreme Court has cleared that, and government can go ahead with the Char Dham highway. और जो आरसी गुहा का है को क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, तो आरसी गुहा का जो है कि पॉल्यूटेड स्काई, डेड रिवर्स, ये सब है, लास्ट में आ जाएगा कि दिस इज द एंड रिजल्ट, उन्होंने बोला ही। फिर जो एग्जांपल्स तो सब वही ठीक है, उधर से जो सिविल सोसाइटी की तरफ से एग्जांपल्स ठीक है। कुड बी ऐड नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स स्टेट वाइज, मतलब वो भी तो इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा रिलेटेड, मतलब अब स्टेट वाइज हम लोग देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। एनी स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट्स कि हमने अच्छा काम किया, ऐसा कुछ? फिर तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर ही रहेंगे। ऐसे कोई अच्छा काम के लिए किन्होंने नहीं, कोई अचीवमेंट्स आया नहीं स्कॉलरली, तो किन्होंने नहीं लगभग बोला। वो हम लोग ही बोल सकते जो मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म डेवलप हुए उनको कंसिडर करते हुए। नॉन रिन्यूएबल वगैरह तो हम लोग बहुत आगे किए हैं, और अभी अनाउंस भी किए कि 2030 तक हम लोग अचीव में, मतलब G20 में ओनली कंट्री टू गो पास्ट नेट जीरो कार्बन एमिशन। वो तो लेट है 2070, लेकिन हम लोग G20 में इकलौता कंट्री है जो अपने टारगेट से आगे है रिन्यूएबल में, तो ये सब सही है। इसके अलावा और ये जो दिल्ली में इशू हो रहा है एयर पोल्यूशन के लिए, तो इन सितु फर्टिलाइजेशन के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ये जो ऑर्गेनिक कुछ डिकम्पोजर दे रहे ऑर्गेनिक डिकम्पोज होने के लिए। सो दैट इज आल्सो अ गुड इनिशिएटिव जो एनवायरनमेंट को भी सेव करता है, प्लस कार्बन इमिशन को भी रोक रहा है। सो ऐसे कुछ गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करना चाहिए हमें। इतने भी नोट्स में है ना, 2 ही स्कॉलर के राउंड घूमता है, 2-3। एक तो अपना रामचंद्र गुहा हो गए, दूसरा सुनीता नारायण हो गई, तीसरा एक माधवन गाडगिल है जो उधर वेस्टर्न घाट के पर्सपेक्टिव से भी बोलते हो कुछ अनक्वाइट बोर्ड से। आशुतोष कोई तो है फॉर्मल जेएनयू का टीचर, इन्वायरमेंटल टीचर, उनका भी बहुत कोट में देखे, याद नहीं आ रहा हमें। सीके वार्ष्णेय, शायद सीके वार्ष्णेय है ना कोई इन्वायरमेंटलिस्ट, हैव यू हर्ड इट? नो सर, ऐसे आशुतोष वार्ष्णेय सुन रखा है। आर्ग्यूमेंट क्या है उनका सी वार्ष्णेय का? विल ऐड, आज बहुत दिन के बाद जुड़े हैं, सो पूरा लिंक ही खत्म है, मतलब कल से प्रिपेयर रहेंगे। चलो ठीक है। और कोई है जो स्कॉलरली आर्ग्यूमेंट हो? माधव गाडगिल का है फिजर्ड लैंड, उसमें बोलते हैं कि एम्पावरमेंट ऑफ पीपल शुड बी देयर,
proper valuation of natural resources should be there, and knowledge dissemination should be there. और इस क्वेश्चन में इनका स्टेटमेंट अच्छे से जाएगा. माधव गाडगिल in his book Ecology and Equity offered a critique of development model followed by India since independence. तो एक्चुअली जो हमारा एनवायरमेंटल मूवमेंट है ना, वो भी डेवलपमेंटल मॉडल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट स्टेट जो रहा है उसी के रिएक्शन में मोस्टली आया है. जैसे पहले नेहरू जी का था लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और हैवी बेसिक इंडस्ट्रीज, फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद जो आए कंसर्न्स तो उसको रेज करते हुए इन्होंने आया. जैसे यार एक सेकंड, माइक इको कर रहा है. अगर किसी ने अनम्यूट नहीं करा तो अपने आप को अनम्यूट कर लो. बाकी सब लोग जो बोल रहा है तभी म्यूट अनम्यूट कर दो, बाकी टाइम म्यूट रख देना उसको. कंटिन्यू सर. हाँ तो ये माधव गाडगिल तो अपने बुक में पूरा डेवलपमेंटल मॉडल का ही क्रिटिक देते हैं सिंस इंडिपेंडेंस. और ऐसे भी ऑब्जर्व दैट कि इंडिया में जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट रहा है वो इन रिस्पांस टू डेवलपमेंटल मॉडल अडॉप्टेड बाय इंडियन स्टेट का वो रिस्पांस रहा है, रिएक्शन रहा है. तो जैसे कि प्री इकोनॉमिक पॉलिसीज में देखते हैं, जैसे लार्ज हाइड्रो पावर से था, साइलेंट वैली वाला था मुद्दा, और न इधर जो टेहरी डैम इधर था, सॉरी वो उत्तराखंड वाला चिपको था. तो जो भी था डेवलपमेंटल मॉडल विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू हैवी इंडस्ट्री, इससे जो लॉसेज हुए और पुअर्स पे जो इफेक्ट पड़ा उसका कल्मिनेशन था. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज पे स्टेट लेड इंटरवेंशन के कारण और एमएनसीज के कारण और स्टेट का जो रिलैक्स्ड अप्रोच था टू ट्रैक द एफडीआई ईटीसी एंड देयर रिलैक्सेशन इन एनवायरमेंटल नॉर्म्स ईटीसी, तो इनका भी रिस्पांस जो नेगेटिव इम्पॉन्स हमारे पुअर्स पे पड़ा तो फिर से इन्वायरमेंटल आईएमटी स्टोमक की तरफ से तो ऐसे जाता है. हाँ, और स्टेट ने अपने तरफ से जो लेजिस्लेशन इनएक्शंस और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए वो उनका था. जुडिशरी एडहॉक मैकेनिज्म पे करती है, केस टू केस बेसिस पे. उनका कोई ग्रांट स्ट्रेटजी नहीं है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट इन इट्स इंटायरिटी. कभी वो देखते हैं कि नहीं डेवलपमेंटल प्रोग्राम सही है, कहीं पर वो बेगर्स को और होमलेस को बोलते हैं कि दे आर पिक पॉकेट, जैसे कि जुडिशरी में क्रिटिसाइज कर रहे थे. फिर कहीं पर वो कभी 4 धाम को मतलब एकोमोडेट करते, कभी 4 धाम को बोलते ठीक है 4 लेन नहीं 2 लेन बनाएंगे, या इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट हम लोग पास करते. तो जुडिशरी केस टू केस बेसिस देखती है, उनका कोई ग्रैंड स्ट्रेटजी नहीं है. तो जो क्वेश्चन में था कि सभी जगह से, तो उनका भी ऐसे लिख सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चले क्या? जी सर. ये पढ़ना है क्या, इंडिया भारत का कमेंट जो है लेते सर. प्रोफेसर वार्ष्णे टॉक्ड अबाउट, यही है सी के वार्ष्णे साहित्य का, टॉक्ड अबाउट ग्लोबल इन्वायरमेंटल issues and sustainable development. He provided grounding in the wider environmental issues for sustainability. He also discussed the reducing of ecological and natural footprints. He also agreed with Professor Tanu Jindal about the problem of groundwater contamination through nitrate in Delhi as brought out by her study. He described the trend of atmospheric CO2 which is accelerating upward from decade to decade. He explained sustainable development as development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Brundtland Commission का है. He also emphasized the dissatisfactory economic growth and GDP of the country towards securing sustainable development, as sanitation sector alone requires 7% GDP. Then he highlighted the importance of all the natural resources, for example oxygen, as we don't have to pay anything and utilize it in every aspect of life, whether it is driving a vehicle or every breath of all living organisms. तो सी के वार्ष्णे का ये दिखता है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कपल करते हैं इन्वायरमेंटलिज्म को. और ये एक डाटा देते हैं कि 7% जीडीपी तो हमारा सिर्फ सैनिटेशन में लग जाएगा. ये अच्छे है जीडीपी का. तो हम लोग तो एजुकेशन और हेल्थ मिलाकर भी 6 नहीं दे रहे, तो आधी है. तो चलो ठीक है, टाइम लगेगा. हाँ, तो कुल मिला के हमारे यहाँ जो दिख रहा है ना, जो इश्यू है नमामि गंगे, सैनिटेशन, ये सब इशू मुझे लगता है ना अब तो बॉयल डाउन होके आता है इकोनॉमिक फैक्टर पे.
पैसे रहते हो जाते, थोड़ा पॉलिटिकल विल भी है, करप्शन है, लेकिन इट इज मोर द इशू ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये सही दिखता है जो वेस्टर्न से हम लोग पैसे डिमांड करते हैं ना इन्वायरमेंटल वाले मुद्दे पे, $100 बिलियन प्लेज किए, देते नहीं है वो लोग। टेक्नोलॉजी भी दे दो, पैसे भी दे दो, काम कर देंगे, मजा आ जाएगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक बार। हेलो सर मैं बोल रहा था बिना माइक को ऑन किए। ये तो सर क्वेश्चन पूरा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, फेजेस, फैक्टर्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, चेंजिंग पैटर्न। तो इस पे तो नोट्स भी नहीं है हमारे पास फार्मर्स मूवमेंट पे, कुछ ऐसा जो स्टडी किया। ये शायद मैम के नोट्स में भी नहीं है स्पेसिफिकली फेजेस वगैरह। लेकिन ये ठीक है, क्वेश्चन सही कह रहे, कहीं नहीं है। और ऐसे तो इवोल्यूशनरी तो नहीं है कहीं लिखा हुआ। मुझे तो लग रहा है इस पर फाइनेंस कमीशन पे मेंस में ना आए इवोल्यूशनरी करके कुछ पता। पढ़ता हूँ, पढ़ लूँ? हाँ पढ़ लो, आई एम नॉट वेरी श्योर कि कितना रिलेवेंट है, बट किसी ने डाला हुआ था ये, कुछ तो मिलेगा। हाँ फास्ट पढ़ लो, जाइए फास्ट पढ़ लो, ठीक है। हाँ ठीक है। In the winter of 88, when the 1988, when the 50 farmer leader from Uttar Pradesh, Mahendra Singh Tikait, laid siege in Delhi with thousands of cultivators and their cattle, literally creating a mess of the boat club loans, agricultural share in India's gross GDP was about 30%. About 3 decades later, the farm sector share in GDP has plunged to about around 15%, but the share of workforce dependent on agriculture has not seen any significant fall. About 55% of India's workers are either farmers or farmhands. In the 1980s, this number used to be 60%. Between then and now, the nature of farming has changed, but with rural households moving away from producing grains for sustainable subsistence to growing high-value commercial and perishable crops where price risks are high. For the 2.3 trillion economy of India, Asia's third largest, one number over half of the country's workforce engaged in an enterprise that is not only non-remunerative but also fraud with production and price risk. Tellingly explains the anger which took over India's rural hinterland. Crop prices plunged while the government allowed cheap imports. While India's farmer movements remain as fragmented as its farm holdings. By a moderate count, there are more than 200 farmer organizations divided across crop and regional lines. Yet farmers across the country successfully put forth two of their core demands to policymakers. They do so in innovative ways like spilling milk and vegetables on highways or appearing to consume dead rats. Oh my God. Soil and urine at Delhi's Jantar Mantar, even filing a complaint with the government for weather forecasts gone wrong. Okay, बढ़िया. Certain that each of their moves will be picked up by television news channels and force governments to act. To begin with, these protesting farmers demanded a waiver of loans and better prices for their harvest. They want a fair trade policy which they think have a pro-consumer bias. Temporal analysis. India has a long history of peasant to farmer movement dating back to the colonial period when farmers in different parts of India revolted against zamindars, landlords, British colonial masters, or powers including feudal lords. The beginning of the new farmers movement in general is seen from the decade of 1980s. Our genesis requires to be stretched back to the earlier decade of 1970s. This was the decade when farmers of Green Revolution area began to rally around political parties and leaders. Important aspects of new farmer movements. Causes. The major reasons were the terms of trade going against the agriculture, declining purchasing power and remunerative prices, agriculture becoming losing proportions, increase in input prices, declining per capita income from agriculture, etc. Beginning of the farmer movement, new farmer movement. It all began in Maharashtra when Shetkari Sangathan under Sharad Joshi, a former employee of UN turned farmer, began agitating in a village called Chakan in Pune for remunerative prices for agricultural commodities, particularly for union. ये बीच बीच में आ रहे हैं ना, कहाँ गया ये ओनियन. This one point agenda of remunerative prices began to be enacted by farmers in other states of India. Scope of the movement, except for the Maharashtra movement, in other movements more than remunerative prices, the other issue received focus.
The list of demands would cover each and every issue: farmers' remunerative prices, writing of loans, anti-government policy of procurement, levy policy, liberalization, etc. Going beyond economics, we see that other than the economic issues, the farmers' movement also focused on social issues. In this respect, the experiment done by the Karnataka farmers' movement under Raita Sangha and the Maharashtra movement under Shetkari Sangathan are noteworthy. Both tried to address the issue of gender or women by organizing massive rallies. The Maharashtra movement attempted to give women the property rights under the program called Lakshmi Mukti. The Karnataka movement, on the contrary, organized a massive rally in Haliyal in 1983 for purpose of shifting property relations at the rural side. Further, the Karnataka movement organized thousands of simple inter-caste marriages, etc. in आगे In fact, women's issues were women in its various struggles too. For example, in its anti-social forestry prohibition struggle, women's issues were prominent, local to global. One of the unique features of farmer movement is that they moved from local to global when globalization was making serious inroads. Some of the organizations went to support or oppose globalization for various reasons. Those who opposed globalization, particularly Karnataka Rajya Raita Sangha, Bharatiya Kisan Union of Uttar Pradesh and Punjab, argued that globalization would destroy the identities of peasantry, introduce Western hegemony, destroy cultural lifestyle, take away the right to produce, distribute and exchange agricultural commodity, etc. On the contrary, those who have supported globalization saw in globalization an answer to rural backwardness, agricultural prosperity and capitalist development. क्या है, कहाँ से लाते हैं इतना सारा? Why is it called new farmers movement? बढ़िया है. The movement is economistic, बढ़िया. The movement believes in secularism, बढ़िया. It believes as well as resorts to constitutional means such as agitations and dharna, बढ़िया. In fact, the Maharashtra movement added new dimensions to agriculture politics. It introduced new studies such as गौबंदी. इसमें क्या करते हैं? गौबंदी कर देते हैं क्या? It refused to glorify neither the pastoral agrarian pattern nor has any nostalgic attachment to an idealized romantic view of the village life before the advent of industrialization. शरद जोशी बोलते वही कर्नाटक वाले. ठीक है. The farmers movement believed in having a distinct world view. This is called positive liberalism. बढ़िया बढ़िया चीज है ये. Shortcomings of the new farmer movement. They have not been effective in bringing radical transformation in the countryside. ये तो सब जगह हो रहा है. This is because of the fact that the movements from the very beginning were unable to overcome the internal conflicts as well as contradictions. Secondly, they did not carry any radical agenda from within. बढ़िया. For example, they never bothered to demand radical land reforms, nor were they concerned about the atrocities perpetrated on marginal classes, including the Dalits in the countryside. तीसरा, since the movements from the very beginning were identified with rich or market-oriented farmers, the other categories received a scant focus in their politics. This is the reason why they have been losing their social basis. बढ़िया है, अभी तक चल रहा है. पैन इंडिया नहीं बना recent वाला farmer movement. Further, their operational areas are confined to those localities wherein classes of rich or market-oriented farmers have come to stay. This has further reduced their areas of operation. Conclusion में, despite a few differences, the new farmer movement did bring about a paradigm shift in the discourse, analysis and perception about farmers in India. बढ़िया जा रहा. It made the policy makers to address the deep-rooted crisis of agriculture as well as agrarian classes in India. It has also helped the farmer to be part of international movement against such issues such as globalization, imperialism and capitalism. ये इग्नू का है. We can add one point here is that farmer must get educated, because we have an example that farmers in Maharashtra under Shetkari Sangathan itself, they are trying to grow bit brinjal, that for which government is not allowing, as they are genetically modified crops. But despite that, the farmers are forcefully using that technology with the help of few industries, few brands of seeds. That must be added, because that is important point. जी. और फार्मर मूवमेंट, अच्छा इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स था. हिस्टोरी से फिर से अब देखते, थोड़ा सा जो इतना पढ़ा उसमें से कुछ याद आ रहा है कि प्री इंडिपेंडेंस इरा से चल रहा है. और पहले फार्मर मूवमेंट हमेशा मतलब वर्क फोर्स का डाटा दिया गया 55% अराउंड है, मोर देन 50%. जीडीपी में अराउंड 15%.
ये डाटा है। फिर एग्जाम्पल में बार बार महाराष्ट्र का आ रहा है, कर्नाटका का आ रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हम लोग उधर बुल्लॉक कैपिटलिस्ट भी देख सकते हैं। और मूवमेंट के तौर पे न्यू फार्मर मूवमेंट में इकोनॉमिस्ट है, सेक्युलर है, ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस के से भी ऑपरेस्ड हैं। फोर्थ है कि ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो कंज्यूमर प्रो कंज्यूमर है। ठीक है, उनका डिमांड है, तो ये तो हम लोग लिखेंगे ऐसे बुलॉक देखेंगे तो कैपिटलिज्म क्या है? वो उनका रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का कंसेप्ट था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में कैपिटलिस्ट टाइप का फार्मर मतलब उधर डेवलप किए उस ग्रीन रिवॉल्यूशन एरियाज में। पंजाब साइड, खासकर पंजाब हरियाणा में, पंजाब हरियाणा एंड वेस्ट यूपी में आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन those farmers were rich and they were using intensive capital and machinery and they were hiring workers from the UP states of UP and Bihar, so means they were like capitalist. And so Rudolf and Rudolf using political economy approach tells them bullock capitalists, बैल वाले पूंजीवादी। और उन्हीं के चलते तो इस बार मतलब 3 फार्म लॉ बिल्स इतना ज्यादा मतलब वो लोग है कि एक साल सस्टेन कर पाए मूवमेंट को ना। ये भी शायद न्यू फार्मर मूवमेंट है क्या? हाँ या एग्जैक्टली, न्यू फार्मर मूवमेंट जैसे इकोनॉमिक्स बेस है तो बिल्कुल है। वो प्रो गवर्नमेंट वाले वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है तो वो भी है। फिर वो सेकुलर इन अप्रोच है तो बिल्कुल है, वहाँ पर सभी रिलीजन के थे, सभी पॉलिटिकल क्रॉस पार्टी कल्चर सब थे। उनका एक नेगेटिव ये था कि वो सोशल बेस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जो हम लोग देखे कि इनका एक लैक है, तो इसलिए उनका वो बियॉन्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन एरिया गया भी नहीं जो लेटेस्ट फार्म मूवमेंट था। हाँ सर, लैक ऑफ सोशल बेस बोल सकते हैं, आप सही बोल रहे हैं। हाँ, टोकन रिप्रेजेंटेशन मिला जहाँ तहाँ, बट दैट वाज नॉट एन इफेक्टिव मूवमेंट इन अदर पार्ट्स। तो बुल्लॉक कैपिटल रुडोल्फ वाला सही हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने कर्नाटका में देखा, महाराष्ट्र में देखा, इन अदर जगह समझ कि सोशल काउजेज को भी ये लेते हैं, स्पेशली वुमेन्स काउजेज, लेकिन ये दलित के काउजेज को नहीं ले रहे। दैट्स वाई इनका सोशल बेस वहाँ भी लैक करता है। तो कोई स्कॉलरली ओपिनियन है क्या इस टॉपिक पे? इस पे तो योगेंद्र यादव कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा यार। वो तो बोल ही दिए होंगे, डेमोक्रेटिक से भी जोड़ दिए होंगे, पता नहीं कहीं ऐसे मैंने याद नहीं सर एग्जैक्ट। इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट AR वासवी ने कहा था ऐसा कुछ। आई गेस आप शायद सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, या तो आप मुझे 2 मिनट देंगे तो मैं अपना एवरनोट फाइल खोलकर वो ढूंढ पाऊंगा। ढूंढ लीजिए सर, वो दैट विल बी बेटर, आध भी हो जाता है, सुन भी लेते एग्जैक्ट। ओके, सो उन्होंने ऐसा कहा था कि ऑल्दो फार्म मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट द फार्म लॉज बट नाउ हैज गॉट ग्रेटर आइडिया of agrarian crisis and new coalition resulting in strengthening of democracy. Leadership and composition are both from urban and urban middle class and elite farmers. जो इन्होंने कहा था बुलॉक कैपिटलिज्म, तो वो बुलॉक कैपिटलिज्म में भी इस बार के जो फार्म मूवमेंट्स में उसमें काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाया। बट इन्होंने ये भी बताया, थोड़ा सा रिपग्नेंट व्यू है इनका, कि फार्म लॉस से स्टार्ट जरूर हुआ था लेकिन एग्रीगेरियन क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है और एक न्यू कोएलिशन जैसा फॉर्म कर रहा था, जो कि हालांकि अब डिसिपेट हो चुका है बट एग्रीगेरियन क्राइसिस की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा था, क्योंकि मतलब बीच में डिमांड आ रही थी कि हमें MSP का लॉ चाहिए, मतलब लॉ बनाइए लीगल बेसिस। हाँ, लीगल बेसिस प्रोवाइड कीजिए MSP पे। तो ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं AR वासवी। मैंने व्यू तो जो मैंने कलेक्ट किया था वो बता दिया है, बट ये इंडियन एक्सप्रेस में ही था, तो अगर आप सर्च करेंगे। सर स्पेलिंग बता दिए। AR वासवी, VASAVI, वासवी, वसावी। ओके सर। एक काम करिए ना आप, जो PSR एज मेंस ग्रुप है ना, उसमें एक तो इसका स्क्रीनशॉट डाल दो या फिर कॉपी पेस्ट कर लो बस। मैं नहीं समझा, मतलब मैं तो अभी जिस ग्रुप में मैं ऐड हुआ हूँ उसी ग्रुप में करना है या फिर कोई और? हाँ, उसी ग्रुप में कर दीजिए, उसी में कर दीजिए। ओके, मैं कर दूंगा। मैं या लिख दीजिए या स्क्रीनशॉट या फोटो, जो चलेगा, सब चलेगा सर। हाँ, मैं कर दूंगा। ठीक है, और कोई ओपिनियन इस पे, किसी को पता हो, एनी अदर वैल्यूएशन? योगेंद्र यादव ने बोला था कुछ, मैंने भूल गया कि ये तो है, तो फार्मर्स आर फ्रॉम द विलेजेस बट दे आर एक्सपोज टू, मतलब थ्रू मोबाइल या एक्सपोज टू वर्ल्ड व्यू, जैसे कुछ था, लेकिन एग्जैक्ट नहीं याद रहा, खोजेंगे तो सही करें, सॉरी।
और कुछ ऐड करना है किसी को? यार इस पे मुझे लग रहा है ना अपने पास स्कॉलरली कंटेंट कम है। कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर का व्यू पता हो किसी को या ऐसा कुछ? हेलो, एम आई ऑडिबल? नहीं, आप ऑडिबल है। एक्चुअली किसी को और याद ही नहीं है, कहीं तो और लिखे हुए चलो हैं। इसको आई फिर विल ऐड। इसको इसके ऊपर मार्कर लगा लेते हैं, इसको बाद में कर लेंगे। मतलब इसको कर लेना है, कोई देख के पढ़ के इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा सर्च कर लेना। योगेंद्र यादव बोलते हैं कि फार्मर्स मूवमेंट कांट बी एंड शुड नॉट बी ए पॉलिटिकल, दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। मीन्स ऐसा होना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगा। यानी उसको पॉलिटिकल होना है। या ये भी बोल सकते हैं अमर्त्य सेन वाला कि इट हैज टू बी मेड द पार्ट ऑफ पब्लिक डिबेट सो दैट गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड। सही। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। Explain the LGBT movement in India as a major civil right movement. How is it affecting political participation in developing societies? LGBT movement is an example of new social movement as it promotes specific social, psychological, sexual rights demands rather than economic or class-based issues. Theoretically, it is influenced from Judith Butler's. दशरथ जी मैं पढ़ लूं क्या? जी पढ़ लीजिए। हाँ, LGBT movement is an example of new social movement as it promotes specific social, psychological, sexual rights/demands rather than economic or class-based issues. Theoretically, it is influenced from Judith Butler's work under lesbian feminism. The Indian LGBT movement is still quite young, but it is not a new concept to Indians. Even in ancient India, there were examples of LGBT-related issues like Shikhandi, or transgender or third gender in Mahabharata. Vedas and Kama Sutra describes 3 types of human gender, that is Pum Prakriti, male nature, Stri, female, and Tritiya Prakriti, third nature. However, during British rule, homosexual relations were considered unethical and declared as a criminal offence under section 377 of the IPC in 1860, whereas in Arthashastra and Manusmriti, it is deemed as a minor offence. After independence, right to equality was enforced via Article 14, but homosexuality remained criminal offence. But LGBT community considers section 377 as ultra virus in nature. It violates their fundamental right with respect to Article 14, 15 and Article 21 and against sexual rights. Therefore, NGOs like Naz Foundation challenged it in Delhi High Court, and in 2009, High Court held that section 377 breached fundamental rights. However, in Supreme Court in 2013 reintroduced section 377. After 2013 verdict, LGBT community started a movement more in an organized way. They got support from common people, media and celebrities like Amitabh Bachchan. LGBT community held gay pride parades and 5 major cities like Delhi, Kolkata in 2008. LGBT magazines like Pink Pages, Bombay Dost were published. They have also started festivals like Pride Festival in Mumbai, LGBT Queer Rainbow Festival in Madurai and Kolkata. इसमें हम वो भी बोल सकते हैं कि दिल्ली मेट्रो में एक प्राइड स्टेशन बनाया है फॉर LGBTs. Meanwhile, LGBT movement also got support from various political parties like BJP, AAP, etc. In 2017, landmark judgment of K.S. Puttaswamy, Supreme Court upheld right to privacy as fundamental right. This brought a new hope for LGBT activists. Hence, all the organized movements and events set ground for Supreme Court to rule Section 377 as unconstitutional in 2018.
Supreme Court also asked government to introduce Act for LGBTs and create opportunity of reservation for LGBT members in government jobs and institutions. As we have seen the proliferation of LGBT into the society, but it also reached to political sector in developing societies. In Indian context, political parties like Aam Aadmi Party, BSP, backed LGBT candidates in assembly elections of UP and Odisha respectively. In 2019, Congress appointed a trans woman as a Secretary General of All India Mahila Congress. Political leaders like Arun Jaitley, Shashi Tharoor supported decriminalizing homosexuality. By 2010, Election Commission has added third option for voters, and immigration forms also followed suit. Smaller countries like Bhutan also decriminalized homosexuality, and Taiwan allowed same-sex marriages. In 2011, Nepal became world's first country to include third gender on its federal census, and also protected LGBT people constitutionally. In South Africa, Argentina, Brazil, certain LGBT movements are meeting with success ranging from decriminalizing homosexuality to relationship recognition. However, countries like Russia, Uganda, Nigeria, these movements are facing hostile political environment. Therefore, Stephen Brown argued that LGBT movements are understudied globally, and the topic of sexuality remains peripheral in political science. Hence, there is a need to make LGBT movement a common sense and develop a counter hegemony. Gramsci against heterosexuality. वाह, गजब लिखा है यार, बड़ा होलिस्टिक लिखा है। एक अभी नया एक्ट आया है, उसको लिखना, उसको भी मेंशन कर देते तो बढ़िया रहता। एलजीबीटी का शानदार है ये प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर्स एक्ट जो था ना, उसका पूरा नाम था कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। ये सर्टेन राइट्स देता है इंडिया के ट्रांसजेंडर्स को, इसको भी मेंशन कर देते हैं। इसको चैनल पे डाल सकते हो क्या इस आंसर को? हाँ, डाल दूंगा मैं। ये कहाँ है ये आंसर ऐसे? भाई पिछले 2 साल की मेहनत है ये। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। अरे बाकी लोग भी थे ना, जैसे अपना ग्रुप है ना, वैसे लास्ट 1-2 सालों में 3-4 बार करा है ये चीज, तो उसका है। अच्छा है आंसर, तो काफी सारे एकदम एस्पेक्ट कवर रखे हैं, इफेक्ट भी काफी सारे हैं इनफैक्ट, है ना, काफी होलिस्टिक आंसर आए थे। ठीक है, एक बार साक्षी ने भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कोई पढ़ लो प्लीज इसको। लेट मी। ठीक है, पढ़ते हैं। तो साक्षी मिश्रा लिख रहे हैं कि LGBTQ मूवमेंट इन इंडिया are part of new social movement started out in nebulous aftermath of feminist movement 1991 ABVA AIDS भेदभाव विरोधी आंदोलन published a groundbreaking pamphlet called Less Than Gay, a citizen's report on the discrimination faced by community in India। बहुत बढ़िया। Came into light for the first time in 1994. ABVA filed a PIL in Delhi High Court challenging the constitutional validity of Article 377. 2014 Nalsa judgment, SC ruled that rights and freedom of transgender people in India were protected under the Constitution. 2018 में SC decriminalized homosexuality. Still, societal contempt and harassment is present. So there is a long way to go. However, the LGBTQ community is no longer a minuscule minority in India, as they have found a voice of their own, and the conversations around one's sexuality are picking up in the mainstream public. We do have a rapidly increasing literature around it, and such issues are also being picked up by mainstream media. Now, impact of LGBTQ movement on the politics of developing societies. पहला लिखते हैं, sexuality and gender are fundamental aspects of human societies that reflect power,
relations and are increasingly becoming the object of public policy. बहुत बढ़िया. Second, most post-colonial societies, many developing countries suffer from political homophobia. Third, the integral relationship between culture and politics has subjected LGBTQ movement to counter propaganda by homophobic groups. Four, it is also argued that the legalist approach taken so far has also marginalized more radical possibilities of resistance. बहुत बढ़िया. Last, however, it also helped create a political environment that expanded the scope of using law as an instrument of social change. आगे लिखते हैं कि I did not have any reading for this topic, hence I have just summed up all my ideas here. This answer needs to be framed properly. Okay, all right. मैं अपना पॉइंट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे. बाकी किसी को कुछ वैल्यू एडिशन करना है इसमें एलजीबीटी मूवमेंट के बारे में? यार प्रोमिनेंट जो लोगों ने एक्सेप्ट करा है कि एलजीबीटी है, ऐसे बहुत लोग हुए हैं रिसेंट टाइम्स में. किसी के नाम बोलो 3-4. नब्ते तनेजा, इसी पर तो शायद वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का. नवतेज कोई तो डांस. हाँ, नब्तेज जोहरिया है. और शायद करण जौहर भी है क्या? वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं सर. नहीं करते. अच्छा, और कोई है जो प्रोमिनेंटली मतलब ऐसा वर्ल्ड में पॉलिटिशियन है वगैरह, ऐसे कुछ सामने आके? वर्ल्ड में तो है, एक पीएम भी है यूरोपियन कंट्रीज का. जो है टिम कुक साहब, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं. डाल देना ग्रुप में. इंडियन ओरिजिन से, पीएम भी इंडियन ओरिजिन से. That will be better. I think his name is let me search on internet. I will just give it to you. कोई छोटा सा ही कंट्री है, मतलब मजेदार कंट्री है. You can mention सौरभ कृपाल. ये एक एडवोकेट है, मतलब ये शायद जज बन सकते हैं अब कुछ टाइम में, अगर गवर्नमेंट इनका नाम अप्रूव करती है तो. ये इंडिया के पहले जज होंगे जो ओपनली गे हैं. सौरभ कृपाल. His name is Leo Varadkar. Leo Varadkar. Varadkar. He is from Maharashtra. Actually, his father was from Maharashtra. एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये प्राइड स्टेशन जो है दिल्ली मेट्रो में नहीं है, ये नोएडा में है. एंड नोएडा इज इन आई गेस उत्तर प्रदेश, राइट? सो ये दिल्ली मेट्रो में नहीं है, ये नोएडा का एक स्टेशन है जिसको पिंक स्टेशन बनाया गया है. कहाँ के पीएम है बरादरा? Leo Varadkar is from Ireland. Ireland, yeah. One more point. A majority view of Indian society is that transgender और homosexuality is a disease. इसको भी ऐड कर सकते हैं हम. हाँ ठीक है. और कोई पॉइंट्स है क्या? किसको वो याद नहीं आ रहा है क्या यार? क्या नाम उसका, भूल गया मैं. कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डाल सकते हैं ना, 14, 15, 16 आरआरसी एसपी कास्ट बेस, सॉरी लैंग्वेज, क्या बोल रहा हूँ मैं, सेक्स जेंडर बेस पे वो नहीं कर. ठीक है, आई थिंक आगे चलते हैं, बहुत हो गया इस पे. नहीं, ये भी शानदार आंसर होगा. चले आगे, या फिर किसी को और कुछ ऐड करना है? आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बस मैं ये पूछना चाह रहा था, ये आंसर्स डालने वाले ग्रुप में ज्वाइन करने का कुछ कोई मतलब क्राइटेरिया या फिर कोई प्रोसीजर क्या है? हाँ, क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि आप 3-4 दिन के लिए रेगुलर रहो, ट्राई टू कंट्रीब्यूट एज बेस्ट एज यू कैन, एंड यू विल बी एडेड इन द ग्रुप.
मतलब इसी ग्रुप में मुझे एक्टिव रहना है, हाँ, आप बोल रहे हैं? मतलब जो एक ग्रुप है ना अपना PSI एज मेंस ग्रुप, इसमें रेगुलरली 2-4 दिन के लिए एक्टिव रहो, थोड़ा बहुत सिंसियरिटी दिखाओ, यू विल बी एडेड। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है यार, एक्चुअली मेंस के टाइम पे मैंने बनाया था ये, मेनली फॉर द मेंस कैंडिडेट, बट ठीक है, नाउ विल बी एडिंग लॉट मोर अदर पीपल एज वेल। ये आपका सही रहेगा। थोड़ा जो एक्टिव रहेंगे और जो कंट्रीब्यूट करेंगे उनको ऐड कर सकते हो, ये सही है। करेक्ट। क्योंकि एंड मतलब कुछ मैंने आई टॉपिक थिंक में ग्रुप स्टडी में नहीं भी है और कुछ टॉपिक है। मैंने ग्रुप में भी बोला है कि जो भी अपन टॉपिक या क्वेश्चंस बता रहे हैं ना, मैं टॉपिक तो ऑलरेडी अनाउंस कर रहा हूँ, क्वेश्चंस में डाल रहा हूँ, तो इफ यू कैन राइट 1 or 2 क्वेश्चंस इन दिस पब्लिक ग्रुप, जो PSI एज वाला ग्रुप है, उसमें सबमिट कर दो। 2-3 दिन आपने कर दिया, दैट शोज कि यार आप लिख लोगे, क्योंकि फिर ग्रुप में ऐड करके फ्री राइडर बनना सभी को जमता है ना, एवरीबडी कैन जस्ट रीड एंड गेट आंसर्स। Actually, the thing is, I have written a lot of answers, so shall I just post them in the group to just add? Because I'm right now I'm just waiting for being selected in a prelims so that I can join new questions. तो मेरे पास जो आंसर है पहले से, मैं उन्हीं का फोटो ग्रुप पे डाल सकता हूँ या फिर स्पेसिफिकली उसी का डाल के ही फिर ज्वाइन हूँ? नहीं, अरे देखो, तुम क्वेश्चंस के आंसर कहाँ से डाल रहे हो किसी को नहीं पता चलता ना। अगर आप प्रॉपर कॉपी से भी आंसर डाल रहे हो तो भी आप अपना कंट्रीब्यूशन तो कर ही रहे हो। एज लॉन्ग वैल्यू एडिशन हो ना तब तक सही है। हाँ, मैं एक्चुअली PYQs की बात कर रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैंने पूरे सॉल्व किए थे, तो मैं उसके बारे में पूछ रहा था। शैल आई अपलोड देम? हाँ, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो यार। हेलो, अरे आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी आंसर आप डाल दो, बस कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए कि यू शुड बी सिंसियर, दैट्स इट। हाँ, ओके। ठीक है, चले आगे अपन। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Social exclusionary practices of Indian state have alienated tribals in India. To what extent FRA, Forest Rights Act and PESA have been able to address the alienation? कौन पढ़ रहा है इसको? मैं पढ़ूं? Yes, please. Okay, so tribes in India, numbering around 104.3 million people, belonging to almost 705 tribes as per census 2011, and constituting approximately 9% of the total population of India, are one of the most vulnerable and marginalized social groups and in the development process. Apart from poor socio-economic status, such as 47.4% living below poverty line, 41 illiteracy rate, etc., some of the tribes of India are caught in the civil war engineered by Naxalism or left-wing extremism, perceived to be the biggest internal security threat that the country is facing. However, in the debate around development process, the issue of rights of tribes are actually sidelined. It is being argued that the evolution of modern nation-state has upspurred territorial authority and traditional rights of the indigenous people. It is manifested in cultural appropriation, taking away community rights over natural resources, land alienation, role of state in reproducing the inequalities through the exclusionary education system, employment sectors, rampant human rights violation and sexual exploitation of local tribes, and ineffective implementation of progressive laws meant for protection of tribal rights. In this context, Forest Rights Act and Panchayati Extension to Scheduled Areas Act were designed to establish a framework for local self-government in scheduled areas, seeking to correct historical injustices by ensuring access to resources and rights which facilitate self-governance. These laws emphasized on efficacy of a democratic approach to forest governance and conservation that gives primacy to legal rights of local communities. PISA Act 1996 empowers Gram Sabha with right to mandatory consultation in land acquisition, resettlement, and rehabilitation of displaced persons. Thus, it seeks to reduce alienation in tribal areas by allowing them to have better control over utilization of forest resources, while granting nominal possession rights, record of rights to dwelling sites of small community of Adivasis. The FRA has failed to provide them with substantive access and ownership rights to the land and forest. With respect to Baigas in Madhya Pradesh, Baiga Chak
has been recognized as a tribe habitat and right has been given to 7 villages, but many local activists argue that the actual number of the villages in Baiga Chak should be 52. FRA and PISA is not implemented on neutral landscapes, but under politically charged and hostile circumstances characterized by resistance from conservation lobby, ambivalence in the forest department, and opposition from non-Adivasis plantation workers. High rate of rejection means denial of land rights to large number of genuine complaints. The slack implementation of FRA is discussed in terms of lack of political will by Oxfam India. Jyotish Santhalpan argues that the basic constraint in implementing FRA has been lack of coordination among the line departments of the state government. For example, Forest Department and the Department of Tribal Affairs, who hold overlapping jurisdiction in the same geographical area. Nadraj, I'm sorry, I could not Nadraj opined that Adivasi question cannot be seen in isolation from ongoing capitalist transition in Indian economy, which is redefining property rights and commodification of land characteristics and the dynamics of change. Additionally, neoliberalization has intensified the process of social differentiation, in which proportion and pluralization are the dominant tendencies among the Adivasis and other underclasses. The conservation versus people approach to protect wildlife has worsened the life of thousands of native people, said Simon Council. Ajit Menon and C.R. Bijoy envisage the FRA's provisions for community rights, together with PISA, has the potential to promote Adivasi self-rule. However, such optimistic projections need to be examined with due consideration to changes in macro policy and socio-economic conditions of Adivasi community in different parts of India. Solid introduction. However, you have failed to mention the positives of FRA and PISA that only focused on nuances. I guess this lacuna. अच्छा, एक बार यार पुटिन भाई, एक बार ना इसको समराइज कर दो फिर से, मतलब जस्ट एक स्ट्रक्चर एंड मेन कीवर्ड्स. ओके, सो सबसे पहले तो ट्राइब्स की पॉपुलेशन के बारे में बताया जाता है और उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को रेक्टिफाई किया जाता है कि जो ट्राइब्स हैं ये कितने ज़्यादा पॉपुलेशन में और उनका कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मतलब कंपैरेटिवली अस बहुत ज़्यादा ही नीचे है. और वो दूसरा डबल एडजेड सॉर्ड उनके लिए ये है कि वो नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में बहुत जल्दी फंस जाते हैं. दूसरी बात, डेविड इनके अराउंड डेवलपमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट प्रोसेस में हम देखेंगे ऑलरेडी सिर्फ 2 ही राइट्स हमारे दिमाग में आएंगे, FRA एंड इसीलिए FRA एंड PISA इन्होंने भी उसके बारे में बताया है. अब इसमें इन्होंने कल्चरल एंगल भी ऐड किया है कि जो कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं ये, उसके बाद रैम्पेंट वहां पर क्या दिक्कतें आ रही है, लैंड एलियनेशन और एंक्रोचमेंट भी बता रहे हैं. उसके बाद एक्सक्लूजनरी एजुकेशन सिस्टम, रैम्पेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लोकल राइट, मतलब उनके बारे में क्या क्या दिक्कतें हैं वो बता रहे हैं. फिर उन्होंने वापस से स्टार्ट किया FRA एंड PISA के बारे में, जब इन्होंने बताया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के, रूरल लोकल सेल्फ या तो एक्चुअली ट्राइबल जो एरिया है वहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करने की बात की स्केड्यूल्ड एरियाज में, टू सीक टू करेक्ट द हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस. उसके बाद फिर उन्होंने सच में इन दोनों के बारे में कम बताया है, जैसा रिव्यू ने भी बताया. फिर उन्होंने FRA के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, बट PISA के बारे में इन्होंने बताया. ग्राम सभा के बारे में मैंडेटरी है कंसल्टेशन. उसके बाद फिर ग्रांटिंग नॉमिनल राइट्स, PISA के बारे में, ये FRA के बारे में थोड़ा बताया है. द FRA हैज फेल्ड टू प्रोवाइड द सब्सटैंटिव एक्सेस एंड लैंड ओनरशिप. विद इन्होंने एक एग्जांपल दिया बैगाज इन मध्य प्रदेश, विच आई एम नॉट फेमिलियर विद, बट इन्होंने जो ऐड किया है इसका कोई सोर्स नहीं ऐड किया है. और FRA एंड PISA आर नॉट इम्प्लीमेंटेड इन न्यूट्रल लैंडस्केप्स बट हॉस्टाइल पॉलिटिकली चार्ज. इसमें इन्होंने फिर उसके बारे में क्रिटिसिज्म ही दिया है. उसके बाद फिर हाई रिजेक्शन रेट मींस डिनायल ऑफ राइट्स. ये ऑक्सफैम रिपोर्ट की एक रिपोर्ट को कोट करके इन्होंने बताया कि कैसे FRA इनफेक्टिवली काम कर रहा है. फिर इन्होंने एक स्कॉलर के बारे में बताया कि FRA लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से काम नहीं कर रहा है बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. उसके बाद फिर एक और स्कॉलर हैं, उनका नाम कोट करके इन्होंने बताया कि क्या क्या इनफेक्टिवनेस और न्यू लिबरलाइजेशन के बाद स्पेसिफिकली क्या दिक्कत आ रही है ट्राइबल रीजन में.
उसके बाद फिर कंजर्वेशन वर्सेस पीपल अप्रोच टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ has worsened the life of thousands of native people. साइमन कॉन्सेल के व्यू को उन्होंने सब्सटैंटिएट करके यूज किया है कि जो अप्रोच हम अभी फॉलो कर रहे हैं उस वजह से और ज्यादा उनके लाइफ में डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके बाद फिर इन्होंने अजीत मेनन और सीआर बिजॉय के साथ आंसर एंड किया है, जहाँ पर ये बता रहे हैं कि एफआरए के प्रोविजंस जो हैं वो कम्युनिटी राइट्स और टुगेदर विद पीस हैज पोटेंशियल, बट अभी ऐसा इन्होंने पहले बताया कि कर नहीं रहा है, बट इन्होंने बताया इट हैज पोटेंशियल फॉर सेल्फ रूल। हाउएवर ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस को हम लोग रियलिटी के साथ वो कंट्रास्ट में करके देखेंगे, तभी हम लोगों को एक ब्राइटर आइडिया मिलेगा इन दोनों एक्ट्स का। कुड बी ऐड कि जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है एसटी के लिए, उनमें भी मतलब एक डोमिनेंट सेक्शन उनको कॉर्नर कर दे रहा है, मतलब कास्ट वाइज मीना वगैरह। नहीं समझा। मीन्स जो बहुत सारे रिजर्वेशन दिया जाता है या बहुत सारा, तो उसमें मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं जो बहुत ज्यादा बेनिफिट रिप कर रहे हैं, और जो एक्चुअल डाउन ट्रोडन सेक्शन जो डिजर्विंग है वो उनके पास नहीं जा रहा है। यस, पर मुझे लगता है क्वेश्चन एफआरआई और पैसा की ज्यादा के बारे में पूछ रहा है, जो गैप फिल हो रहा है उसके बारे में। यस यस। एक दो पॉइंट मैंने भी ऐड करे हैं इसमें कि एफआरए के प्रोविजन में हिस्टोरिकल इंजस्टिस को वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दिस इज अ शिफ्ट, गवर्नमेंट शिफ्ट। फिर कम्युनिटी राइट्स और लैंड टाइटल की भी बात कर रहे हो, आजकल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी एमएसपी पे ले रहे हैं, तो ये भी अपन एग्जांपल लिख सकते हैं। अच्छा, और किसी को कोई पॉइंट याद आ रहा हो तो वो ऐड कर दें आप। वो जस्ट जनरल पॉइंट है, वो अलग लिख सकते हैं जहाँ भी एसटी से कुछ इश्यूज हो, तो यहाँ तो एफआरए के पर्सनली पूछ रहे हैं तो हाँ। इस क्वेश्चन में आई थिंक सीधा पूछा हुआ है कि कितने हद तक एलिनेशन को एड्रेस कर पाया है इंडियन स्टेट, या फिर इन टर्म्स ऑफ एफआरए एंड पैसा। तो इसमें आई थिंक दो हाफ होने चाहिए सीधा क्वेश्चन के, कि यार एक तरफ बोलेंगे कि हाँ एलिनेशन को एड्रेस करा है काफी हद तक, एंड एक सेकंड हाफ होगा नहीं करा है, वी नीड टू डू लॉट मोर। हाँ, कंटेंट वाइज आंसर वाज वेरी रिच, बट इसकी स्ट्रक्चरिंग अगर अच्छे से करी जाए तो ये आंसर मतलब काफी अच्छे मार्क्स फेच कर सकता है ये आंसर। करेक्ट। इसमें कुछ ऐसे रिसेंट एग्जांपल्स या कुछ दे सकते हैं क्या ट्राइबल्स के बारे में, किसी को पता हो तो, या फिर कोई थियोरी जो अप्लाई कर सकते हैं? रिसेंट एग्जांपल में तो मुझे एफआरए के आगे पैरेलल में जो बोडोलैंड को और थोड़ी और ऑटोनॉमी दी है वो भी यहाँ लिख सकते हैं, एक्सक्लूजनरी प्रिंसिपल मिला दिया हमको। जो एम्बिट है वो माइक्रो क्या बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, उसको बढ़ा दिया गया है, और भी बहुत सारे जो प्रोड्यूस हैं उसको ऐड कर दिया गया है ताकि उनको मतलब ज़्यादा एक्सेस मिल पाए, इकोनॉमिक एक्सेस ऑब्वियसली। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो लिस्ट है उसको ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। एम्बिट हैज़ बीन इंक्रीज टू ऐड मोर एंड मोर प्रोड्यूस। और उसको जियोग्राफिकल इंडिकेटर से भी थोड़ा सा सपोर्ट किया गया है। डू यू नो एनी एग्जांपल फॉर दैट? क्योंकि मैं कोई actually स्कीम का remember- नाम भी है ना इसमें? हाँ, ट्राई फूड स्कीम, TRIFOOD स्कीम। ये मेरे ख्याल से ट्राइबल मिनिस्ट्री चलाती है। हाँ, ट्राइबल मिनिस्ट्री का है। हाँ, ट्राइबल मिनिस्ट्री चलाती है। पहले से वन धन स्कीम में भी चल रहा है ना? हाँ, वन धन योजना वन धन योजना स्कीम है। यार मेरे को एक शायद ओडिशा का कुछ याद आ रहा है जहाँ पे ट्राइबल्स ने ये करा था, क्या बोलते हैं इसको, माइनिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था। नियमगिरी फॉरेस्ट हिल्स था क्या वो? हाँ, नियमगिरी हिल्स। जी जी। तो मतलब दीज एग्जांपल शो कि अभी भी पूरी तरह से कंसोलिडेट नहीं हुआ है, मतलब अभी भी बहुत कुछ है। और कोई प्रोटेस्ट या कुछ भी ट्राइबल्स के बारे में?
क्या बोल एक सकते तो हैं? ट्राइबल्स का पतालगढ़ी मूवमेंट था, लेकिन वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ नहीं था झारखंड में। वो पत्थरी गढ़ी और मूवमेंट वो तो वो थोड़ा एक्चुअली अलग भी लोकल था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था। नहीं, वो यहाँ नहीं आएगा, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था, क्योंकि वो पंचायती को रिफ्रेन करना चाह रहे थे, पत्थरी गढ़ी मूवमेंट। यार वो तो गाँव जैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट में देते हैं उन लोग को स्पेशल प्रोविजन, तो व्हाई कांट बी मतलब एक्सटेंड इट टू झारखंड एंड उड़ीसा? भाई वो तो ऑलरेडी मिल रखा है क्या, शेड्यूल्ड स्टेट्स में आकर जो किया है, शेड्यूल्ड स्टेट्स में जो किया है। फिर भी मतलब लेटर और स्पिरिट में नहीं हो पा रहा है उन लोग का, लेटर मतलब स्पिरिट लोकल मतलब डोमिनेंट हो जाते हैं वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और उन लोग का बात उस ढंग से नहीं मतलब चल पाता है। वही लोकल से गवर्नमेंट एक्चुअल डिवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हो पा रहा है। हाँ, वही फोर्सफुल लैंड एक्विजिशन वाला मैटर है। और एक बात बता सकते हैं हम, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, इट इज ऑल्सो related to the tribal rights. I have personally seen that government is not even able to give them what we can clothes. नहीं, Clothes also. रिहैबिलिटेशन Rehabilitation का issue बड़ा. हाँ, रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है। सेम वाज द केस फॉर आई गेस चिपको मूवमेंट एज वेल। इंक्रोचमेंट हो रहा था ट्राइबल लैंड पर ही। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, ये आई कैन नॉट रिमेम्बर दैट, सो लिटिल बिट, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ। शायद एक एटॉमिक पावर प्लांट था तारापुर आई गेस। उस टाइम पर भी जो महाराष्ट्र के जो शेड्यूल्ड रीजन्स थे आई गेस, जो रीजन्स में जहाँ ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन थी, उसको भी जो एंक्रोचमेंट हुई, तब उन्हें भी रिहैबिलिटेशन ठीक से नहीं मिला था। बट ये फेडेड टॉपिक है, तो इसे आंसर में लिखेंगे और उसको याद नहीं रहेगा एग्जामिनर को। बट ये था एक। नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ ट्राइबल रीजन, एक्चुअली इट इज कोकन रीजन. तारापुर इज इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट. इट्स नॉट ट्राइबल रीजन एक्चुअली. और वो रिहेबिलिटेशन के बारे में नहीं ज्यादा, वो एनवायरमेंट के बारे में ज्यादा इशू है. ओके, सो आई गेस मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कुछ इसके बारे में। ठीक है, एनी अदर पॉइंट्स, या फिर आगे चलते हैं अपन, बहुत हो गया टाइम है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कमेंट ऑन वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी, एग्जामिन द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। इसके ऊपर जरा ब्रेनस्टॉर्म कर लो एक दो सेकंड्स के लिए एंड थिंक करके बताओ क्या क्या है वुमेन मूवमेंट। प्री इंडिपेंडेंस ओरिजिन है, लिबरल्स लाइक इंट्रो कैसे करेंगे पहले, तो इंट्रो बताओ, इसमें इंट्रो कैसे करेंगे पहले? जो सभी जगह वही देते, प्री इंडिपेंडेंस लिबरल्स लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वुमेन्स मूवमेंट को लिबरल लाइन्स पे शुरू किया। ठीक है, उसके साथ लिबरल्स जरूर लिखिएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद गांधी जी का आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट में उनको जोड़ा, मास मोबिलाइजेशन किया। बट वहाँ पर उन्होंने वुमेन्स काउज को ऑटोनोमसली नहीं लिया इंडिपेंडेंटली, बल्कि वो एज ए स्ट्रेंथनिंग ऑफ INM था वो। आप बाकी तो इंस्टीट्यूशंस बने, उस पर नहीं फोकस करते वुमेन्स मूवमेंट पे। और उसके बाद इंडिपेंडेंस इरा में अपर्णा मेहता बोलती है कि शुरू वाले पीरियड जो थे जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो सब वुमेन्स ग्रे ईयर्स बोलती है अपर्णा मेहता उसको। ग्रे ईयर्स मतलब कि उसमें कोई रियल एक्टिविज्म नहीं हुआ। वो लोग थॉट किया कि स्टेट विल टेक केयर ऑफ अस, देयर इज नो पॉइंट गोइंग अगेंस्ट आवर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, और लेकिन क्या है? उसके बाद पैराडाइम शिफ्ट आया टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट ऑफ 1974 से। इन द बैकग्राउंड ऑफ UN डिकेड ऑफ फॉर वुमेन 1970 जो था। टेक्निकली इसे आई ओपनर बोला जाता है, टेक्निकल टर्म भी दिया जाता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट पे फोकस हुआ।
एक तो मिसिंग वुमेन का कॉन्सेप्ट और सेकंड नेगेटिव सेक्स रेशियो। ठीक है। इसके बाद फोकस है तो उनका रिपोर्ट में एक सजेशन था कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन शुड बी देयर एंड इट वाज देयर 16 ईयर लेटर। और उन्होंने पंचायती लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन की बात की, ये भी मिला 73rd 74th में। और 1980s में 3 इंसिडेंट्स है जो फेमस है, वो है मथुरा रेप केस, सती एट देवराला, शाहबानो जजमेंट्स। क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो इसमें एक पॉइंट था कि नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया फॉर्म इन 1925 एज ए नेशनल ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। बट ये जो मूवमेंट थी वो पर्टिकुलर इलिट क्लास वुमेन के लिए स्टार्ट हुई थी और वो काफी मेन स्ट्रीम नहीं आ सकी, वो इलिट क्लास वुमेन तक ही सीमित रह गई। और आगे बोलना है या रुकूं? बस मेरा पॉइंट हो गया। जी 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 ठीक है। और 1990s के बाद ये 1990s के बाद जो मंडल कमंडल का पॉलिटिक्स हुआ, तो इसके बाद ना देयर वर डिवीजन अमंग वुमेन्स मूवमेंट्स ऑन पार्टी लाइन, आइडियोलॉजिकल लाइन्स, कास्ट लाइन्स। यूनिटी वाज लॉस्ट, ये रादर वुमेन्स सॉलिडेरिटी वाज लॉस्ट। लेकिन इसमें फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी का इनकलकेशन हुआ। और कुछ है क्या इसमें? हाँ, इसमें एक मधु किश्वर, मधु KISHWR, उनका बोलता है कि वुमेन्स बोलती हैं वुमेन्स मूवमेंट हैज अचीव्ड नथिंग सब्सटेंशियल बट बिजार ए सेट ऑफ लॉज। एग्जाम्पल्स है, जैसे अचीवमेंट्स में डाल सकते हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट। एग्जाम्पल में एक चिपको मूवमेंट भी वुमेन लेड मूवमेंट था, इन्वायरमेंटल मूवमेंट। और उस दिन डिस्कस कर रहे थे जिसे रिसेंट में मी टू, टाइम्स अप, भूमाता ब्रिगेड, सबरीमाला। और एग्जाम्पल है कि इंडियन कल्चर को देखते हुए ना शक्ति कल्ट का, मतलब हम लोग शक्ति कल्ट को मैंने इंडिजिनस ट्रेडिशन में देखते हैं, फीमेल पावर। कुल मिला के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो हुआ, तो इसके कारण इनको डेथ ब्लो मिला वुमेन्स मूवमेंट को, आइडियोलॉजिकली डिवाइड हो गए, सॉलिडिटी लॉस्ट हो गया। ऑल इंडिया कोई एजेंडा ही नहीं इनके पास, वुमेन मूवमेंट के पास कोई सॉलिडारिटी नहीं है इनके। हाँ, इनके पास चार्टर ऑफ डिमांड्स भी नहीं है, यूनिफाइड चार्टर ऑफ डिमांड्स की मेरे ये डिमांड्स है। वुमेन एक बार मेरा वाला दीजिए दशरथ मान जी। क्या सर? जैसे अपन कास्ट मूवमेंट्स छोड़ के वो वर्कर्स मूवमेंट के लिए बोलते हैं ना कि इट रिमेन डिवाइडेड ऑन द अदर लाइंस। जी, आइडियोलॉजिकली डिवाइड, मैंने देवर जूनियर ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं। करेक्ट, ये भी एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। रिमेन जूनियर ब्रांच नहीं, जूनियर पार्टनर सॉरी। वुमेन्स मूवमेंट में क्या हुआ, 2-3 चीजें हुए कि जब रिजर्वेशन की मांग की गई, ओबीसी वुमेन इन पार्लियामेंट रिजर्वेशन जब मांगा जाता है, तो ओबीसी लीडर्स को लगता है दिस इज पार्ट ऑफ इरोजन ऑफ द शेयर ऑफ ओबीसी पॉलिटिक्स, ओबीसी रिजर्वेशन और ओबीसी शेयर थ्रू द एजेंडा ऑफ अपर क्लास या अपर कास्ट वुमेन, ऐसा है कुछ। इसमें ये ऐड नहीं कर सकते हैं कि यूजिंग डिजिटल मीडिया द स्कोप ऑफ वुमेन मूवमेंट इन इंडिया इज इंक्रीजिंग
and is increasingly getting unionized with respect to global movement. ऐसे कुछ This has been a part of women's movement in India. It has got itself associated with feminist rise of feminist movement. It has been there. This phenomena has been there. फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड जो गेन किया करेंसी, तो उसके साथ एसोसिएटेड हुए. और आपका जो पॉइंट है कि ये सोशल मीडिया हैज मेड इट मोर इफेक्टिव इन वेंटिंग देयर इश्यूज एंड ग्रीवांसेस, उसमें एग्जांपल भी डाल सकते हैं. मी टू पार्ट ऑफ ग्लोबल कहाँ से शुरू हुआ है, हमारे यहाँ भी इफेक्ट पड़ा. कोई ग्लोबल लीडर है, वुमन लीडर, कोई ग्लोबल जो रिसेंटली स्टैंड किया हो वुमेन इश्यूज को लेकर के? जैसे हम मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट का नाम लेते हैं, या फिर एक स्वीडन की फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम लेते हैं फॉरेन अफेयर्स में. तो डोमेस्टिक एस्पेक्ट्स में कोई व्यक्ति हो जो वुमेन एस्पेक्ट्स पे उन्होंने लीड किया हो कहीं पे भी ग्लोबली इन एनी कंट्री. कमला भसीन ने लीड किया था फेमिनिस्ट मूवमेंट को. हाल फिलहाल में उनकी डेथ हुई है. इंडिया में मेरे ख्याल से अगर फेमिनिस्ट डिस्कोर्स में देखा जाए तो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा है, उन्हीं का कंट्रीब्यूशन दिखता है मुझे सबसे ज्यादा, कमला भसीन का. फर्स्ट पार्ट है उसमें थोड़ा सा हम ऐड किए हैं इसमें. विमेन्स मूवमेंट इन इंडिया goes back to more than 100 years, but its composition, its agenda, its form, style and its outreach, मतलब इसका चेंज हुआ है. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट बिफोर इंडिपेंडेंस फर्स्ट एड्रेस द विमेन्स कंडीशन within Hindu society, but this was restricted to women in upper caste and exposed illiberal traditions such as treatment of widows, मतलब विडोज रिमैरी एक्ट आया था और सती वगैरह ये सब खत्म हुआ था. और उसके बाद hence wished to safeguard their cultural edifices by reforming what they thought were mere aberrations but left the patriarchal social structure untouched. मतलब उस वक्त भी मतलब पेट्रियार्की उस तरह से खत्म तो नहीं हुआ ये सब होने के बावजूद भी. Subsequent events were induction of women in nationalist movement, वही 1930 में शायद बंदरी की मंजरी सेना वगैरह बना था. और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी वीमेन बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे. The constitution has promised of gender equality. बाद में 1947 के बाद क्या हुआ? Transformation to the women's movement in India in post given the empirical and ये criticism है, given the empirical and ideological centrality of NGO in the terrain of Indian feminism, dominant feminine response to NGOization. मतलब एक जो मूवमेंट है उसको एनजीओनाइजेशन बोल देते हैं कि मतलब एक बस एनजीओ बन जाता है हर बात के लिए, लेकिन कुछ काम करता नहीं है और वो अलग ही ढंग से एलेज कॉप्शन एंड प्रोफेशनलाइजेशन हो जाता है. और उनका मतलब वही जो स्टूडेंट यूनियन में हम लोग लिखते हैं कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी नहीं है, वो किसी एक मतलब संगठन नहीं है ओवरऑल एक एज तो इस मतलब लिमिटेड conceptual tools to make sense of present moment, if not entirely hiding from the view the political possibility that it offers for feminist reflection and remobilization. मतलब ये सब जरूरी है कि remobilization हो और एक ब्रॉडर कंसेंसस बैठे इंडियन फेमिनिस्ट में. यार कोई जर्मनी में ऐड हुआ क्या वुमेन मूवमेंट वेयर बाय वुमेन विल बी रिप्रेजेंटेटिव, वुमेन विल बी मोर रिप्रेजेंटिंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर एट हायर लेडर? ऐसा कुछ मूवमेंट हुआ या सिर्फ पॉलिसी ही आई है? कुछ हुआ था ना ऐसा? पॉलिसी आई थी मेरे ख्याल से, बीच में न्यूज आई थी. वो जर्मनी में नहीं थी शायद, कोई यूरोपियन कंट्री थे, इतना तो याद है. हाँ यूरोपियन कंट्री थी लेकिन जर्मनी नहीं थी मेरे ख्याल से. ओके कौन सी, कुछ है नहीं आइडिया? कुछ हुआ था ना कॉर्पोरेट सेक्टर में, दे विल बी गिवन मोर राइट्स, ऐसा कुछ हुआ था यूरोप में. हाँ एक्चुअली जो एग्जीक्यूटिव ऊपर से होता है ना मेन उन लोग में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जरूरी था, इसके लिए लाया गया था कुछ पॉलिसी.
दृश्यम सर तो लगता है चले गए, आएंगे वो। जर्मनी ही है आई थिंक। वैसे भी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह बहुत एडवांस हो गया, वहां तो मतलब अलग ही इशू चलता है, न्यू मूवमेंट चल रहा है। अपने इधर इंडिया का स्पेशली पूछा था इसमें, तो अपना तो ब्रेड एंड बटर इशू ही अभी भी एक प्रकार से। जर्मनी के बोर्ड रूम का एक रूल है कि बोर्ड रूम में जितने भी पार्टिसिपेशन होंगे उसमें से आपको वॉलंटरली 30% वुमेन को रखना है। पहले से था, अब उसको शायद बढ़ा दिया गया है। उसमें शायद इक्वल पार्टिसिपेशन की बात की जा रही है। आप सही बोल रहे थे, जर्मनी का ही है वो। हाँ मैंने लिंक डाल दिया है, चेक कर सकते हैं, 30% है। और कोई पॉइंट है जो हम ऐड कर सकते हैं? या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई थिंक आगे बढ़ना चाहिए अपने को। नेक्स्ट Yeah, please. क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा स्क्रीन शेयर कीजिएगा प्लीज, स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके मैं शेयर कर देता हूँ। तो इज माय स्क्रीन विजिबल? दिख रहा है स्क्रीन? हाँ हाँ स्क्रीन दिख रहा है, हाँ। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को अप्रोच करना पड़ेगा। तो यह है कि इन व्हाट वेज डू सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी? गिव योर आंसर्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। सर इसको फ्रेम करें। पहले तो सिविल लिबर्टीज और ह्यूमन राइट्स का ओरिजिन देंगे, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का इन इंडिया। पहले एक बार ऊपर का फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, उसमें ह्यूमन राइट्स कवर हो जाएगा। नाही करायचं। अच्छा, एग्जामिन द नेचर ऑफ सिविल लिबर्टी मूवमेंट्स इन इंडिया। हाँ सिमिलर क्वेश्चन है। हाँ, इसके बाद इसका मटेरियल मिल जाएगा, उसमें फ्रेम कर देंगे, डेमोक्रेसी से ऐड कर देंगे, कपल कर देंगे। ठीक है, पढ़ता हूँ। हाँ, द आइडिया हो गया। एग्जामिन द नेचर ऑफ सिविल लिबर्टी मूवमेंट इन इंडिया। द आइडिया, ठीक है। एम आई ऑडिबल? यस यस। हाँ, the idea of civil liberties rights is based on the philosophy of liberalism. It seeks to curb the arbitrary use of executive powers and maintain rule of law. Thus, these rights are necessary to lead a civilized life. Example, rights to free speech, expression, right to life, liberty, equality before law, etc.
The history of civil rights movement in India can be traced back to Indian freedom struggle, where our early political leaders demanded freedom of press, free speech, and proper representation in legislative matters. In 1936, Jawaharlal Nehru laid the foundation of Indian Civil Liberty Union. After independence, these ideas were also incorporated in the Indian Constitution under Article 14, including equality before law, 15, including no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, etc. 16, including equal opportunities in public employment, Article 19, 20, 21, etc. However, this is very unfortunate that preventive detention provision has got a space in our constitutions. Moreover, the rights given under Article 22, including preventive detentions, are only for the namesake. And the bigger concern is retaining the section 124A of IPC, including sedition, which was introduced by colonial rule to suppress nationalist sentiments. These provisions has been misused time and again to suppress the democratic dissent and social activism. Nehru's government was the first to use it against communist leader A.K. Gopalan. Recent examples that curb on internet in Jammu and Kashmir for more than a year was another example is unconstitutional detainment of political leaders during the abrogation of Article 370 itself. The emergency period of 1970s witnessed the growth of civil rights movement in India when the state was becoming police state, plus rise of number of civil rights groups like Association for Democratic Reforms ADR, People Union for Civil Liberties etc. Apart from the constitution, judiciary has also been a champion of civil liberties in India. Examples: PIL, instituted by Justice Bhagwati. Example: Menka Gandhi case, right to live with dignity. Puttaswamy judgment, right to privacy and decriminalization of homosexuality under Article 377, giving due importance to rights of LGBTQ community. The recent Transgender Rights Act 2019 is also a milestone in civil rights movement of India. The civil rights movement in India has been progressive and mature enough to understand and speak up for the needs of diverse sections. हाँ ठीक है, सही बात है. हाँ सही बात है. ठीक है. हो गया. समराइज करूं क्या इसको? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ महाराज, काफी ब्रॉडली लिख रखा है. हाँ करता हूँ. इन्होंने आइडिया ऑफ सिविल लिबर्टी दिया, फिलोसफी ऑफ लिबरलिज्म है, सही है. फिर हिस्ट्री जाता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, नेहरू जी का इंडियन सिविल लिबर्टी यूनियन 1936 है. आफ्टर इंडिपेंडेंस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में. फिर लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है, 124A है, और शुरुआत हो गया शुरू से ही A.K. गोपालन. उसके बाद इंटरनेट है. फिर हम ये भी देख सकते हैं, इमरजेंसी भी ऐड कर सकते हैं. आर्टिकल 370 में जो डिटेंशन हुआ उसको भी ले सकते हैं. और फिर सिविल राइट ग्रुप्स भी आया है, ADR है, PUCL है. फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने भी रोल प्ले किया है PIL के थ्रू, मेनका गांधी केस में इंटरप्रिटेशन सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से. आर्टिकल 21 भी दे सकते हैं, LGBT कम्युनिटी के रिस्पेक्ट में भी दे सकते हैं. और ठीक है, इन इंडिया इट हैज बीन प्रोग्रेसिव एंड मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक अप फॉर द नीड्स ऑफ डाइवर्स सेक्शंस. ठीक है. काफी अच्छा आंसर लिखा है, बट इसमें क्वेश्चन में एक नेचर ऑफ सिविल लिबर्टी मूवमेंट पूछा है. नेचर के बारे में कुछ बोला है क्या? नेचर तो नहीं है. नोट्स में भी ना सिविल लिबर्टीज का कंटेंट शुरू होते ही घुस जाता है ह्यूमन राइट्स में, ऐसा है. आई थिंक इसमें जो नेचर पूछा है, इसमें एक तो कंपेयर कर सकते हैं वेस्ट का और इंडिया का थोड़ा बहुत. हाँ सेकंड है सर कि ये इंडिविजुअलिस्टिक लीडर्स का इनिशिएटिव रहा है, कुछ इनलाइटेंड लीडर, और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड भी रहा है, जैसे थ्रू कॉन्स्टिट्यूशंस एंड लेजिस्लेशंस एंड जुडिशियरी से भी. और तीसरा नेचर है कि हमारे यहाँ का सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन के थ्रू इसका डिमांड भी हुआ है. एक और नेचर बोल सकते हैं कि रिएक्टिव अप्रोच है इंस्टेड ऑफ प्रोएक्टिव अप्रोच. जब कुछ कांड होता है तो उसके बाद अपने जाग जाते हैं सब लोग. हाँ वो ग्रे एरिया वाला भी था ना, वो वुमेन्स मूवमेंट तक. अच्छा वो वुमेन्स मूवमेंट. इसमें तो 1975 डार्केस्ट आवर ही हो जाएगा, डार्क
सिविल लिबर्टी के लिए? एडीएम जबलपुर केस। जी। और क्या बोल सकते हैं नेचर के लिए? लिख सकते हैं कनेक्टेड विद द ग्लोबल कंसाइंस एज वेल। वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज तो है ही, तो एक और बोल सकते हैं यार, जो आजकल क्या हो रहा है ना, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड ड्यू टू सोशल मीडिया वगैरह, सिविल लिबर्टीज मूवमेंट का जो नेचर है ना, काइंड ऑफ अभी घरों घरों तक पहुंच गया है। मतलब इट इज लाइक बहुत जो बेस है बहुत ब्रॉडन हो गया है, काफी डिफ्यूज हो डिस्पर्स्ड गया। वे में डिफ्यूज्ड हो गया काइंड ऑफ। The conscience has, consciousness has diffused and percolated among almost all the sections with respect to civil rights, I think. Yeah. और ऐसा लिख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट रिवॉल्यूशन के बाद पीपल्स पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स गवर्नेंस हैज इंक्रीज। जैसे अपने लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत सक्सेसफुली हो गया इंडिया में। इसको सिविल लिबर्टी से कैसे जोड़ेंगे? मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा अच्छा, ऐसे एक और बोलेंगे ग्लोबलाइजेशन से जोड़ रहे थे तो उनका है कि ग्रोथ ऑफ ह्यूमन राइट्स कॉन्शियसनेस, तो हम ये भी कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ सिविल राइट्स कॉन्शियसनेस। यदि वो हुआ है तो ये भी हुआ ही होगा। और ये भी बोल सकते हैं ना कि बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक एंड द सब्सिक्वेंट लॉकडाउन अनाउंस्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, सभी जगह पे मतलब ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड देयर हैज बीन कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द अथॉरिटेरियन लीडर्स एंड वी सी सप्रेशन ऑफ सिविल लिबर्टी राइट्स। मतलब इंडिया स्पेसिफिक ना बोलते हम बोल सकते हैं जनरली। सर, सिविल लिबर्टी एंड सिविल राइट्स आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट लिटिल बिट। तो एंड्रयू हेवुड में कहीं लिखा था सिविल लिबर्टीज आर लाइक फ्रीडम्स, लिबर्टीज, एंड राइट्स आर लाइक मींस इंटाइटलमेंट अगेंस्ट स्टेट। और आप जो ये बात कर रहे हैं ना कोविड के ऑथोरिटेरियन योगा, it is more related to the globalization, opposed to the globalization, I think. सिविल लिबर्टी में क्या 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 आता है बाय द वे? सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी, रूल ऑफ लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 14, 15, 21। राइट्स ही तो हो गया ना। मतलब जब सिविल लिबर्टी जो आइडिया है, कंसेप्ट ऑफ सिविल लिबर्टी इन द लीगल फॉर्म राइट्स बोलेंगे। ओके ओके। और कोविड के वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ तो सप्रेस हो ही गया ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलो या जो भी है, सब कुछ काफी हद तक गवर्नमेंट्स ने कंट्रोल करा ही, अच्छे कारण के लिए करा, बट करा तो सही ना। हाँ, फिर भी हाँ, एक चीज और हम लोग हमेशा जोड़ सकते हैं कि इन द मतलब नेशनल, इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कुछ ऐसे बोलते हैं ना, ये सबऑर्डिनेट हो जाता है सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज। एक्चुअली मैडम के नोट्स में भी सिविल राइट्स, लिबर्टीज, राइट्स, ह्यूमन राइट्स सब कपल्ड है, तो हम लोग भी सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, इसको लेके एक न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल भी था, वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन हैंड्स ऑफ एलीट, मैंने पढ़ा था, ढूंढ के भेजता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज याद आ गई मेरे को इससे, इमैनुअल कांत वाला नहीं है वो, नो मैन शुड बी ट्रीटेड एज एन एंड, नो मैन शुड बी ट्रीटेड एज मीन्स टू एन एंड, वो लिख सकते हैं इसमें। कैसे डालेंगे लेकिन? वो क्वेश्चन स्पेसिफिक रहेगा तब, अदरवाइज जेएस मिल का है कि सिविल राइट में ना कि राइट टू स्पीच, इवन अ सिंगल मैन कैन ब्रिंग द ट्रूथ। ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है क्या, जो लोग सुन रहे हैं?
Please make it interactive, guys. There's no need to hesitate. You can speak up. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर ले क्या अभी? सिविल लिबर्टी ह्यूमन राइट्स मूवमेंट का इन्फ्लुएंस क्या रहा इंडियन डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के ऊपर, एंड एग्जांपल्स चाहिए उसके. शैल वी? जी एक मेजर पार्ट तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में ही हो गया. करेक्ट, मतलब हाफ पार्ट बोल सकते हैं. इसमें स्पेसिफिक बस इतना ही डिस्कस कर लो कि अभी कौन से मूवमेंट्स थे या क्या था, एंड हाउ डिड इट इम्पैक्ट द डेमोक्रेसी. हाँ, वर्किंग ऑफ democracy का part. वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है तो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भी है, ठीक है. वर्किंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हम लोग 1947 से ही देखेंगे. तो उस समय से जितने भी सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स है उनका इंटरेक्शन देखेंगे हमारे स्टेट से, डेमोक्रेसी से. जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आया, वो अन्ना आंदोलन वगैरह लिख सकते हैं अपन, लेकिन वो सिविल लिबर्टी के लिए बोल सकते हैं क्या? वो करप्शन से, इंडिया अगेंस्ट करप्शन था. उसी के वजह से आरटीआई एक्ट आया ना, तो डेमोक्रेसी काफी हद तक सब्सटेंशियली अफेक्ट हुआ. लिख सकते हैं क्या ये चीज? जेपी आंदोलन लिख सकते हैं इसमें. हाँ, जेपी आंदोलन लिख सकते हैं. नहीं मतलब लिखने के लिए देखो, आई मीन इस क्वेश्चन में क्या है ना, दो चीजें है. एक तो मूवमेंट क्या था, किसने से करा, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, एंड हाउ डिड इट इम्पैक्ट द डेमोक्रेसी. तो पहले सर एज ए मूवमेंट यदि जेनरिक बोले विदाउट गिविंग एग्जांपल्स, यदि बाद में आता है तो ऐड कर लेंगे एग्जांपल्स. ऐसे देखेंगे कि सिविल राइट्स मूवमेंट्स एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स वेयर द मीन्स और टूल्स टू एंजॉय द राइट्स एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फंडामेंटल राइट्स है, अदर सोशो इकोनॉमिक राइट्स विच वर प्रोवाइडेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसके थ्रू हम लोगों ने डेमोक्रेसी को वर्केबल बनाया, इस डेमोक्रेसी के मॉडल को हमने सक्सेसफुल बनाया थ्रू यूजिंग लीगल जुडिशरी, थ्रू यूजिंग सोशल मूवमेंट्स, पॉलिटिक्स, थ्रू यूजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड थ्रू यूजिंग प्रेशर ग्रुप टाइप्स थिंग्स. तो कुल मिलाकर डेमोक्रेसी का बेस स्ट्रेंथन हुआ, सोसाइटी डेमोक्रेटाइज्ड हुआ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हुआ और डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस बढ़ा. तो बस इतना ही, दिमाग बंद हो गया इसके बाद. एक्चुअल हैपनिंग्स लिख सकते हैं ना इसके बाद अपन एग्जांपल्स में. जैसे 44th का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया वो आंदोलन के बाद, जेपी आंदोलन के बाद, या फिर पुट्टी श्री रामलू का जो वहां पे, वो भी एक सिविल लिबर्टी मूवमेंट ही था. आंध्र प्रदेश वाला लिंग्विस्टिक डिमांड वाला. सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट्स दोनों है. सिविल लिबर्टी ह्यूमन राइट्स तो हम लोग ये भी लिख देंगे कि जैसे कि वायलेंस अगेंस्ट दलित, माइनॉरिटीज, वुमेन, चिल्ड्रन, ये जो होता है. ह्यूमन राइट्स में पुलिस रिफॉर्म्स भी आता है, ह्यूमन राइट्स में एफस्पा भी आता है इश्यू बनकर, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी आता है. तो these issues became the part of the public debate, and this has made our democracy more workable and more participative. And through these civil liberty and human rights movements, many institutions were set up like NHRC, NCSC, NCST were given teeth, rather जो नहीं है, NCWETC, तो NCM. तो उससे भी हमारा डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग जो है, इंस्टीट्यूशंस जो है, स्ट्रेंथन किया है स्पिरिट को. इसको लिख रहे हैं ना सर वहां पे, दृश्यम सर लिख रहे हैं ना इसको.
Hmm. नहीं तो मैं इस बात लिखकर डाल दूंगा इसको। इसको करते हैं यार बाद में, मुझे लग रहा है इसमें कंटेंट ज्यादा नहीं है और स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, थोड़ा सा सोच के सबको ही कर लेते थोड़ा थोड़ा। जी Okay. I think all of us are exhausted now. हाँ हाँ, एक्चुअली लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट। Yeah.